today there is a topic of adaptation and climate. ठीक है, we will discuss in this class adaptation and climate. Before starting the topic adaptation and climate, I want to say something that I will give today science exercise question that you have to do in your fair notebook. Clear? Today I will send you a PDF, chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate, on your WhatsApp as well as your MS team. Got it? Only exercise question you have to write it in your fair notebook, because on Thursday your class you have 4 days. आपके पास 4 days हैं जिसमें आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर? तो बेटा आज मैं आपको के एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. ठीक है, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब बीच में कोई नहीं बोलेगा. कोई भी डाउट है, जिस बच्चे की अटेंडेंस रह जाती है बेटा, वो क्लास के एंड जो 5 मिनट्स रह जाते हैं तब हम बोलेंगे. ठीक है, जब बताना आप मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है. बेटा चैप्टर 7 में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. यस, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट. क्लियर? आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? क्लाइमेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस? Yes, ma'am. It is clearly visible. Okay, fine. Ma'am. So today we will discuss the topic climate and adaptation. Got it? I have discussed with you the topic climate. What do you mean by climate? And now we will discuss how climate and adaptation do work each other. Clear? So बेटा यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल्स हैं. एनिमल्स में जो पोलर रीजन के एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स में कौन से एनिमल्स की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पोलर बियर्स. मेन यहाँ पर पढ़ना है हमें पोलर बियर्स, और हमें पढ़ना है पेंगुइन. पोलर बियर्स और पेंगुइन के बारे में पढ़ना है कि हाउ दे कैन अडेप्ट इटसेल्फ इन दैट क्लाइमेट, कि अपने आप को वो क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट करते हैं. गॉट इट? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर. चलो, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट इज व्हाट इज क्लाइमेट? Ma'am, climate is the average weather condition of a place. Yes, very good. It is the average weather condition, the average weather pattern taken over a long time. Long time, it can be 25 to 35 years. Got it? Okay. We have discussed yesterday this topic, and one more thing you can say to me. आप बताइए मुझे कि जम्मू एंड कश्मीर का वेदर क्लाइमेट कैसा होता है? जम्मू एंड कश्मीर. Ma'am, cold. Cold. Ma'am, cold. And Kashmir ka weather होता है very cold. Ma'am, and cold. Yes, लिख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर का वेदर ह्यूमिड. ओके बेटा, जम्मू एंड कश्मीर का. और एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? Very cold. बेटा आंसर इज Ma'am, Jammu and Kashmir का moderate है. Ma'am, moderate, hot, wet. hot and Wet. Clear है? And if I am talking about the Rajasthan, I will tell the roll number who will give me the answer. Nilesh Thakur was absent in the previous class. According to me, I don't think so he will give the answer. Tanuj Kumar, he was present last 3 classes. Tanuj Kumar, roll number 29. Can you please tell me the climate of Rajasthan? Tanuj, sorry, yes, Tanuj Kumar. Can you please tell me the climate of Rajasthan? Am I audible to you, Tanuj?
Gatik, roll number 38. Remember, I will mark absent if you will not give me the answer. There is a present mark. Gatik, roll number 38. Yes. Yes. Can you please tell me the climate of Rajasthan? Ma'am, hot. Okay. Ma'am, can I? Beta, Ma'am, yes, you ma'am, can. hot and dry. हॉट एंड ड्राई. बेटा राजस्थान का जो टेम्परेचर होता है इट इज हॉट एंड ड्राई. राजस्थान का जो नॉट टेम्परेचर, हॉट एंड ड्राई, इट इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका केरला. केरला का बताइए मुझे. उद्भव सरस्वत, टेल मी द क्लाइमेट ऑफ केरला. उद्भव सरस्वत. Ma'am, moderate. What beta? Ma'am, can I? No, wait Ma'am, for a moderate. minute. What moderate? Ma'am, moderate, hot and wet. Beta very hot and wet, not moderate. Ma'am, very hot and wet. Very hot and wet. Okay, ma'am. Clear? Yes, Now, ma'am. next new student is for roll number 46, Harshit. North East India Yes, का. ma'am. Can you please tell me the North East India climate? Hot and wet. North East, how it can be possible बेटा? मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर टेम्परेचर, जहाँ का जो क्लाइमेट होता है बेटा, ये आपका Ma'am, होता है वेट. Cold and wet. ओनली वेट. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वेट होता है. क्लियर? चलो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास का. तो यहाँ पर आपको बताया था कि मैंने कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन भी कराए थे यहाँ पर. ठीक है. अब आते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. क्लाइमेट क्या है? हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट होता है. प्रोफाउंड मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए. इन सभी, ये सभी किस पर डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पर. क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तो सर्वाइव करेंगे. अगर उन्हें क्लाइमेट सुटेबल नहीं मिलता दे कैन नॉट सर्वाइव. क्लियर? सो लाइक आई कैन गिव एन एग्जाम्पल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिश. अगर आप फिश को पानी से बाहर निकाल देंगे, इज इट पॉसिबल दे कैन सर्वाइव? इज इट पॉसिबल? No, ma'am. No, No, ma'am. ना? No, ma'am. इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? इसका क्लाइमेटिक कंडीशन है कि दे विल सर्वाइव इन वाटर. क्लियर? तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पोलर रीजन में कौन से एनिमल्स हैं जो अपने आप को कैसे, किस कंडीशन में अडेप्ट करते हैं. सो यही बताया हुआ है इसमें. तो आइए, एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं. क्यों अडेप्ट करते हैं? क्योंकि वो सर्वाइव कर सके उस कंडीशन के अंदर. ठीक है. एनिमल्स लिविंग करते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हॉट क्लाइमेट में भी लिव करते हैं और जो कोल्ड में भी. some animals can live वो हॉट में भी रहते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं. क्लियर? ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बात करती हूँ कि वो एनिमल्स बताइए जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडे क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, तो उसमें आपके आते हैं पोलर बियर्स. Ma'am, penguins भी. Ma'am, snow leopard भी. Yes, snow leopard, And polar penguins. bears, And penguins. Yes. बेटा ये सारे जो एनिमल्स हैं, penguin, snow leopard, polar bears, they can survive in cold climate. अब क्वेश्चन ये आता है how they can survive in cold climate. Clear? कि भाई कैसे सर्वाइव करेंगे कोल्ड क्लाइमेट में? कैसे करते हैं? क्योंकि बेटा इनके पास बहुत स्पेशल फीचर्स होते हैं. क्या होते हैं इनके पास? स्पेशल फीचर्स. ठीक है. इनके पास बेटा कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. ठीक है. जिस वजह से ये एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के अंदर या फिर एक्सट्रीम
हॉट क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फीचर्स होते हैं एनिमल्स के और जो हैबिट्स होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। उसे ही क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। तो आइए इस पैराग्राफ में मैम वो यहाँ लिखा हुआ, सर्वाइव कर सकते हैं? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो एनिमल्स अपने आप को हॉट में भी सर्वाइव कर ले या फिर कोल्ड में भी, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। उस टॉपिक को, उस डेफिनेशन को कहते हैं अडेप्टेशन। जो कोल्ड में सर्वाइव करते हैं उसमें एनिमल्स आते हैं आपके पोलर बियर्स और आपके पेंगुइन्स, स्नो लेपर्ड्स, ठीक है। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन इस पैराग्राफ में। बेटा यहाँ पैराग्राफ है, इसकी लास्ट थर्ड लाइन आइए, अंडरलाइन करें। फीचर्स एंड हैबिट्स, करें अंडरलाइन। फीचर्स एंड हैबिट्स that helps animal to adapt to their surroundings। एनिमल्स के कौन से जो फीचर्स होते हैं और कौन सी जो हैबिट्स होती हैं जो एनिमल्स को क्या करती है, अडेप्ट करने में हेल्प करती है सराउंडिंग में। समझ रहे हो? अगर आपको हम पानी, अगर एग्जांपल देती हूँ मैं ह्यूमन बीइंग को, वो बिना ऑक्सीजन गैस के और हीलियम गैस के अगर वो समुद्र के अंदर जाता है, सी में जाता है, ही और शी कैन सर्वाइव? टेल मी। नो मैम। नो ना, बिकॉज नो वो मैम। उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है। हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है कि हम सर्वाइव करने के लिए हमें वाटर चाहिए, ठीक है, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि अगर इफ वी विल गो इनटू द सी, डीप सी, दैट देयर इज नो ऑक्सीजन एज इन फॉर्म ऑफ एयर, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड वाटर, ठीक है। So these are not a climatic condition for human beings. Same as it is, animals have some certain features and habits so that they can survive in according to surrounding. That is called, इससे क्या होता है बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि हमें मेन पॉइंट क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में आ जाइए। कुछ कंट्रीज हैं, सम कंट्रीज हैं जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जहाँ की, वो अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ रेड पेन से, अंडरलाइन करो इसे। सम वेल नोन कंट्रीज, बेटा कुछ कंट्रीज है जो किससे बिलोंग करती है, पोलर रीजन से, जहाँ पर क्या होता है, ठंड होती है, जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन सी कंट्री है। दैट इज कैनेडा, ग्रीनलैंड। मैं अपने ग्रीनलैंड से पहले क्या बोल रहा? कनाडा बुक में है बेटा, अंडरलाइन करो ना। आपको, मैं, आपके पास बुक होगी ना, मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। कनाडा, ग्रीनलैंड, बुक में अंडरलाइन करो। जिसको नहीं विजिबल है इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया। गॉट इट? ये तो थे पोलर रीजन के कंट्री के एग्जाम्पल। किसके थे? पोलर रीजन के, जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। अगर मैं वहीं बात करती हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्रीज, वहीं नेक्स्ट लाइन में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्री। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, सुनो समझो ध्यान से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता रहता है। भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। गॉट इट? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है इंडिया। आपने देखा है ना कि पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर तो नहीं होता ना, होता है? मॉडरेट होता है। मॉडरेट होता है, क्योंकि देखो आप देखते हो कि जनवरी में कैसा होता है, विंटर, समझ रहे हो ना, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, विंटर। तो ये क्लाइमेट ही तो है। फिर इसके बाद आपका ऑटम आ जाता है, ऑटम मीन्स पतझड़, ठीक है। ऑटम के बाद क्या आने लगता है, बताइए? ऑटम के बाद आपका आता है समर, समर। ठीक है। ऑटम के बाद क्या आता है आपका, समर। अब समर के बाद अब आप देखते हो यहाँ अभी क्या चल रहा है, स्प्रिंग, मैम स्प्रिंग, मॉनसून, Good. मॉनसून, मॉनसून, मॉनसून चल रहा है, दैट इज मॉनसून। यस, क्लियर। तो इन इंडिया वी विल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, विंटर,
समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। गॉट इट ना? सो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारा इंडिया है बेटा, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। देखो टेम्परेचर की वेराइटीज़ की वजह से आप देखते हो ना कितने डिफरेंट स्पीसीज है भारत के अंदर। तो ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कमिंग क्लास में। आज हम पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अंडरलाइन कर लिया होगा आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कहाँ पर होती है कंट्री, कौन कौन सी कंट्री है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करें क्योंकि मेरे यहाँ से प्रॉपर नेट है। चले अब नेक्स्ट टॉपिक का। फिर मैम एकदम से ठीक आ रही है, फिर मैम एकदम से वॉइस मैम एकदम ठीक आ रही है, फिर नहीं आती। ओके ओके, सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, ये नेट मैम चेक करो एकदम आप। क्लियर आ रही है। सुनो अब एक्टिविटी 7.2 पर आइए। एक्टिविटी 7.2 में हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में कि पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है। हम बेटा यहाँ पढ़ेंगे कि पोलर रीजन है ना बेटा, उसका क्लाइमेट कैसा होता है। बेटा पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम। जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और किससे कवर रहता है? स्नो से। वहाँ की जो सराउंडिंग होती है वो किससे कवर होती है? स्नो। वहाँ की जो सराउंडिंग है वो स्नो से कवर होती है, बहुत कोल्ड होता है ऑलमोस्ट ऑल ईयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो लिख सकती हूँ यहाँ पर स्नो होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर 6 मंथ के लिए तो सनसेट होता ही नहीं है बेटा। 6 मंथ तो सनसेट होता नहीं है यहाँ पर। सनसेट मतलब सनसेट का मतलब बताइए, सूरज बताइए। सूरज ढलना। मैम सूरज ढलना। यस गुड। पोलर रीजन में सनसेट नहीं होता 6 महीने और 6 महीने सनराइज नहीं होता। ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे मैम अगर सनसेट नहीं होता तो वहां बहुत गर्मी होनी चाहिए। यस राइट, आप यही बोलेंगे ना कि मैम सनसेट नहीं होता तो वहां गर्मी होगी। अब मैं आपको समझाऊंगी वहां गर्मी नहीं होती है क्योंकि 6 मंथ वहां पर सनराइज नहीं होता और 6 मंथ वहां पर सनसेट नहीं होता और वहां पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सराउंडिंग पूरी कवर रहती है स्नो के साथ। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर यहाँ ध्यान से समझना, विंटर में यहाँ पर टेम्परेचर कितना जाता है? -37। कैन यू इमेजिन कि -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में। हमारे इंडिया में तो देखो आप कभी 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं गया है, देखा है ना आपने। हमारे यहाँ में इंडिया के अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम कितना रहता है विंटर में? अकॉर्डिंग टू मी 8 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ्रीजिंग स्टार्ट होती है और -37 डिग्री सेल्सियस पे तो हर एवरीथिंग इट कैन बी, वो क्या हो जाती है? इट कैन बी फ्रीज। इस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ फ्रीज हो सकती है। हम ह्यूमन का जो ब्लड है वो भी फ्रीज हो जाता है यहाँ इस टाइम। मैम फिर वहाँ लोग कैसे रह पाते हैं? वही चीज़ बताऊंगी बेटा। तो ह्यूमन बींग्स है वो भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर इतना -37 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो बेटा ह्यूमन की बात बाद में कर देंगे हम, यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में कि वो अपने आप को इस टेम्परेचर पर कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक, ये एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर अपने आप को इस कंडीशन में अडेप्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे पोलर बियर्स के बारे में कि पोलर बियर्स में कि वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा पोलर बियर की पॉइंट्स ध्यान से समझना। जो पोलर बियर्स होते हैं उसकी बॉडी पर फर होते हैं। क्या होते हैं? फर। पता है ना फर किसे कहते हैं? बॉडी पर हेयर्स जो होते हैं। ठीक है, वाइट कलर के फर होते हैं जिसे हम हेयर कहते हैं, इसे हम हेयर कहते हैं। बॉडी पर फर होंगे। अगर सोचो, इमेजिन करो किसी के बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर है तो क्या बाहर की कोल्डनेस उसकी बॉडी में आ पाएगी? नहीं ना। हम विंटर में क्या यूज़ करते हैं? ब्लैंकेट यूज़ करते हैं और ब्लैंकेट से क्या करता है? ब्लैंकेट हमें बाहर की एयर जो है, बाहर की जो कोल्ड एयर है उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सेम एज इट इज़ पोलर बियर की बॉडी पर वाइट फर होते हैं जो उसको बाहर की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उससे अडेप्ट करता है। ठीक है, वाइट फर होने की वजह से ये
जो वहाँ का जो बैकग्राउंड होता है, जो वहाँ पर पूरा जो सराउंडिंग है स्नो से कवर है, उसमें क्या हो जाते हैं, इनविजिबल। ये जो पोलर बियर है ये स्नो में अपने आप को स्नो में विजिबल नहीं हो पाते। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल उसे देखेगा तो वो विजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाइट फर के जो पोलर बियर है वो किसमें मर्ज हो गया, स्नो के साथ। ठीक है, और स्नो के साथ मर्ज हो जाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है, अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पर लास्ट लाइन मैं ये लिखवा रही है, लास्ट लाइन पर अंडरलाइन करें। ये बेटा अडेप्टेशन है पोलर बियर की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राइट द 3 अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, या 5 मार्क्स में आ सकता है राइट द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पहला लिख लीजिए, अंडरलाइन करें, पोलर बियर्स हैव वाइट फर। क्यों होते हैं, सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, 73 पेज पर। ये अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, ये अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रीडेटर से। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना, पहला पॉइंट लिखा प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या है, दुश्मन। ठीक है, ये अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लिखा हुआ था यहाँ पर, क्यों प्रोटेक्ट कर पाते हैं, कोई बताएगा मुझे। यस मैम, क्योंकि स्नो वाइट बैकग्राउंड में वो मर्ज हो जाते हैं और दिखते नहीं है। गुड गुड गुड। अब आ गया, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रीडेटर्स जो हैं, प्रीडेटर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, अंडरलाइन करें, इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कैचिंग देयर प्रे, इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे। ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। प्रे किसे कहते हैं, बताइए, प्रे, शिकार। यस, हम शिकार होता है प्रे। शिकार। प्रे मीन्स शिकार। मैम ठीक है, गुड। तो बेटा प्रे क्या है, शिकार होता है, तो अपने आप को क्या करते हैं, गुड, टू प्रोटेक्ट, ये लिखते हैं, दे ऑल्सो कैच देम इन कैचिंग देयर प्रे, अपने शिकार को बहुत इजीली से क्या कर लेते हैं, कैच कर देते हैं। ठीक है, और अपने आप को, जो इसकी बॉडी पे जो व्हाइट फर होते हैं ना, वो 2 काम करते हैं, एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट, अपने आप को मर्ज कर लेते हैं सराउंडिंग में, दूसरा क्या करते हैं, ये अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं उसके वाइट फर। ठीक है, और बेटा इनकी बॉडी के अंदर ना क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थिक लेयर्स होती है फर की। ठीक है, और बालों के अंदर, जो बॉडी के अगर आप हेयर हटाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा, दे ऑल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। तो अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, यहाँ मैं अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, सर्कल कर दिया मैंने, दे ऑल्सो हैव अ मोर फैट अंडर देयर स्किन, फैट ज़्यादा होने की वजह से इनको सर्दी नहीं लगती है। ठीक है, इनको कोल्डनेस फील नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि सेकंड पॉइंट क्या है, ये अपने आप को कूलिंग कोल्ड क्लाइमेट में भी अपने आप को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। और बेटा ये गुड स्विमर होते हैं, अंडरलाइन कर लो भाई, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, दे आर गुड स्विमर। बेटा बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, ये बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, गुड स्विमर। ठीक है, ये गुड स्विमर होते हैं। और वन मोर थिंग, मैं आपको ना कल इसकी वो बताऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे स्विमर और के इनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कल, क्योंकि आज की वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गुड स्विमर होते हैं, तो बेटा ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, दे आर गुड स्विमर। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स पोज हैज आर वाइड एंड लार्ज। पोज मतलब उनके जो पंजे होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, इस टाइप से कुछ वेब फॉर्म में पैर होते हैं बेटा उनके। ये मैंने ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनाई है। इट पोज आर वाइड एंड लार्ज, अंडरलाइन कर लीजिए। इनके पोज कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोज लार्ज होंगे तो ये क्या करते हैं, इजिली ये अच्छे से स्विम भी कर सकते हैं और स्नो पर क्या कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। समझ लो ना, क्योंकि देखो वेब्ड होंगे ना, देखो अगर पोज इस टाइप से ना वेब्ड फॉर्म में बंदे कंबाइंड है, तो वो स्नो पर इजिली रख पाएंगे। अगर जैसे कि अगर फिंगर्स इस टाइप से हुई तो वो इजिली क्या नहीं कर पाते, स्नो पर वॉक नहीं कर पाते। अपने
वेब फिट के वजह से ये इजिली क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। लिख लीजिए भाई, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को भी। और इनकी सूंघने की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेलिंग। तो लिख लीजिए यहाँ, अंडरलाइन करें। इट कैन ऑल्सो, इट्स नॉस्ट्रिल कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग मैम अगर ड्यूरेशन। इसको कोई मारने आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ बेटा, इनकी सूंघने की स्मेल बहुत ज्यादा होती है। ये ना देख के ही मतलब स्मेल करते ही काफी किलोमीटर दूर से स्मेल कर लेते हैं कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल की वजह से ये क्या करते हैं, अपने शिकार को कैच करते हैं। दे कैन कैच देयर प्रे, दे कैन कैच देयर prey because of strong sense of smell. Catch their prey. क्यों? Because of strong sense of smell. Got it? ठीक है, और क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ पर आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ, सारा पॉइंट इसमें है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा पेंगुइन है, पेंगुइन का क्या, लेट वेट फॉर अ मिनट। ओके बेटा, नेक्स्ट है, म्यूट करें अपने आप को। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन देख लीजिए भाई, एक बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज म्यूट करें। पेंगुइन का है यहाँ पर, प्लीज म्यूट कर लो भाई। बेटा क्या बात है, म्यूट नहीं कर सकते? यहाँ पर भूमि स्टूडेंट है, आपको सुनाई नहीं दिया कि आपको अपने आप को म्यूट करना है? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू। If you don't want to study, just leave the class. There is no need to study. आपको बोला है बेटा कि आप म्यूट करें, क्यों नहीं करते म्यूट? हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। हाँ जी बोलो। मैम हमारे फोन की बैटरी मैम 2% रह गई है मैम। ठीक है, तो आप एग्जिट कर जाइए। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना है, आज की क्लास का होमवर्क क्या है, समझो ध्यान से। ये पूरा जो डायग्राम है, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स, आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे फेयर नोटबुक में। आज का जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन देंगे ना, चैप्टर में आप लिखेंगे, जो भी चैप्टर का नेम है वहाँ आप लिखेंगे अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। ठीक, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर के पॉइंट्स बता रही हूँ, कहाँ से स्टार्ट होगा इसके पॉइंट्स। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे ये वाला, एक मिनट, पहला पॉइंट आप लिखेंगे ये वाला, फर्स्ट पॉइंट। आप इस चार्ट की तरह ना बनाइए, अगर आप चार्ट की तरह बना सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पॉइंट में लिख सकते हो। ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल लिखेंगे अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पहला अडेप्टेशन क्या है, द वाइट फर, ये वाला जो पॉइंट बोल रही हूँ मैं, वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। क्यों नहीं है? ठीक है, ये वाला पॉइंट, जो वाइट फर होता है वो इजिली विजिबल नहीं होता, इस वजह से ये क्या करते हैं अपने प्रेडेटर को, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इसके जो प्रेडेटर होते हैं और जो प्रे होते हैं वो इनको देख नहीं पाते, दुश्मन और शिकार दोनों इसको नहीं देख पाते। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे ये वाला, इनकी इनकी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट हैज़ टू थिक, लिख लीजिए, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होते हैं, जिस वजह से अपने आप को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इनकी बॉडी के अंदर, दिस वन,
ये एरो के साथ है, पहले ये लिखेंगे, इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, द फैट इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। फिर फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट फोर्थ आ जाएगा, मार्क कर लीजिए बुक में, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसी लाइन में आएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के बाद ही लिखोगे ये वाला। सेंस ऑफ स्मेल की वजह से क्या होता है, ये अपने प्रे को बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, सो इट हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस। अब मुझे ये बता दीजिए कि आज के होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया है। मैं आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपके व्हाट्सएप पे और आपके इस पर सेंड हो जाएंगे MS टीम पर। एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूंगी लिखने के लिए, ठीक है। और ये डायग्राम, अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा है प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि आपको मैंने 4 दिन दिए हैं। संडे कल हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और संडे 4 डेज हैं आपके पास, आप इजीली लिख सकते ये हो। तो आपने डायग्राम दिया है मैम, हमें पॉइंट्स में लिखना है। हाँ पॉइंट में लिख लीजिए, वेल एंड गुड, मैम ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पहले। आज का जो चैप्टर स्टार्ट करोगे ना फेयर नोटबुक में, यस मैम। तो फेयर में जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही करना है। तो फेयर में ये यहाँ से स्टार्ट होगा, आप लिखेंगे, चैप्टर लिखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, है नहीं यहाँ पर। आप पहला चैप्टर लिखेंगे, चैप्टर नेम, फिर लिखेंगे चैप्टर का नेम, नंबर, डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, लिख दिया। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो आज आपको ये कंप्लीट करना है सभी को, आज ये कंप्लीट कर लेना है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कल संडे है, संडे को करके मुझे दिखा देना मंडे तक। मैम आपने जिस पॉइंट पे आपने टिक लगा रखा है वो कौन से नंबर पे आएगा? कौन से वाले पॉइंट? मैम ये जो दोबारा से टिक पोलर बी की लगाओ, पिक के नीचे है। रुको, ये वाला मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पूरा, रुको मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 है, मार्क कर लो। ये पॉइंट नंबर 1 है, मार्क कर लो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। एरो के अकॉर्डिंग चलना, क्लियर। ये पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ लिख देती मैम हूँ। एक बार नंबरिंग बता। और ये पॉइंट नंबर 5 है। आई होप आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जिसको डाउट है वो रह सकता है यहाँ पर। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर, वेट बेटा, यहाँ पर एक आज का छोटा सा क्वाइट कॉट है जो आपको ध्यान से देख लो भाई। नथिंग इन लाइफ इज़ टू बी फियर्ड, कुछ भी लाइफ में डरने वाली कोई बात नहीं होती। इट इज़ ओनली टू बी अंडरस्टूड, सिर्फ समझने की बात होती है कि आपको समझना होता है सिर्फ, ठीक है। एंड नाउ इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर। अभी टाइम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल बना सकते हो इन्फॉर्मेशन, सो दैट वी मे फियरलेस, क्लियर। तो आज की मैं आपको एक क्वाइट कॉट दिया है जिसको आप माइंड में रखें। ओके बेटा, थैंक यू। मैम आपको हेडिंग ये होमवर्क डाल बता सकते हैं, एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। दिया। यस यस यस, चलो एग्जिट ओके मैम, करते हैं। करो बेटा थैंक इसको यू एग्जिट। बाय मैम। मैम, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे मैम। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। ओके बेटा। मैम जो जिसकी आपने अटेंडेंस नहीं पोलर हुई बियर के है वो पॉइंट्स यहाँ बोल, पे आ सकता है। हाँ बेटा बोलो। बाय मैम। मैम जो आप